So taking a very simple example, children, you can put this example in your copies, and it is an old example again. Take an example that there is a company called Maruti Suzuki India Limited and Tata Sons. मारुति सुजुकी का नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने से पहले 20 लाख है, एंड टाटा सन्स का भी इंटरेस्ट पे करने से पहले 20 लाख है. They are supposed to pay 2 lakh rupee as interest, and they are supposed to pay 4 lakh rupee as interest. Children, what is 20 lakh divided by 2 lakh? 10 times. Company तो एक बार ही interest देगी, not going to pay you 10 times. But then too, if we compare the solvency, Maruti has the capacity to pay interest 10 times, but Tata has the capacity to pay interest only 5 times. So who has a higher capacity? Where you will find safety and security of your interest income from the company in case of Maruti Suzuki India Limited. So Maruti is comparatively having better solvency in terms of payment of interest in comparison with the Tata. So this is told to us by a ratio, children, called as what? Interest coverage ratio, where the formula is net profit before interest and tax divided by interest on long-term loans or borrowings. सबको सुनाई पड़ गया? How we judge this capacity? चलिए very quickly update this ahead. So children, what do we observe from here? A higher ratio shows better solvency, or a poor ratio shows better solvency? A higher ratio shows better solvency. Net profit before interest and tax जितना ज्यादा और interest जितना कम, magnitude of so called repaying the capacity आप बोल सकते हो, magnitude of betterment बोल सकते हो, magnitude of solvency बोल सकते हैं, sounds to be much better. Okay, चलिए. So children, it establishes the relationship between net profit before interest and tax with the interest on long-term debts or borrowings, you can say. How to calculate interest? ये सबको आता है. PRT upon 100 के फॉर्मूले से इंटरेस्ट आ जाएगा. बट चिल्ड्रन, आपको कैसे फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके लिए थोड़ा सा चूरन आपको सिखाया गया है. चलिए, नजर आया बच्चों? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से. You every time will be willing to have net profit before interest and tax. मिल गया सबको? And children, क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे दे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दे, विल यू बी एबल टू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? आ जाएगा? क्वेश्चन बड़ा चतुर है. क्वेश्चन आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देगा, टैक्स की वैल्यू दे देगा, इंटरेस्ट की वैल्यू दे देगा. विल पीपल बी एबल टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? ऊपर से नीचे आते टाइम भी सबट्रैक्टेड समथिंग, नीचे से ऊपर जाते टाइम वील ऐड. बस ये आपको मेन याद रखनी है, बाकी रेशियो तो बहुत आसान है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 71 विजिबल टू एवरीबॉडी. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 350 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 50,000. सो लेट्स पुट द फॉर्मूला फर्स्ट. व्हाट्स द फॉर्मूला चिल्ड्रन फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? Net profit before interest and tax upon interest on debentures. What is the value given to us for net profit, children? 3,50,000. And interest is given to us how much? 50,000. What would be the answer, children? 7 times. डिफिकल्ट? इतना समझ में आ गया? चलिए बी. चलिए जरा सीक्वेंस डिजाइन कर लेते हैं. चिल्ड्रन, हमें चाहिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट? नेट प्रॉफिट
before interest and tax. Thereafter we subtract what? Interest. आंसर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स. Then we'll subtracting tax. Answer would be net profit after tax, isn't it? यही होगा. चलिए. सो चिल्ड्रन आपको यहाँ पे कौन सा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में? बिफोर टैक्स दिया है ना, बट क्या नेट प्रॉफिट में ये लिखा था कि इट इज आफ्टर इंटरेस्ट? नो. आपको अज्यूम करना है अगर वो बिफोर टैक्स दिया है तो वो ये वाली वैल्यू है. आई रिपीट चिल्ड्रन, कितनी है वैल्यू? 3,50,000. और आपको कहां तक जाना है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक. क्या हमारा न्यूमरेटर वही था जो क्वेश्चन में दिया हमको? डू वी हैव द सेम न्यूमरेटर इन द क्वेश्चन एज वी रिक्वायर चिल्ड्रन? जो हमें चाहिए वो नहीं है. तो बेसिकली हेयर द न्यूमरेटर विच इज गिवन इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हमें कौन सा चाहिए? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. और ऊपर चाहिए हमें, तो और ऊपर क्लाइंब अप करना पड़ेगा. व्हाट इज द वैल्यू गिवन टू अस एज इंटरेस्ट चिल्ड्रन? 50,000. So what is 350 plus 50 चिल्ड्रन? समझ में आ गया? अगेन चूरन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसीलिए कह रहा हूं चूरन नहीं खाएंगे तो गड़बड़ी करेंगे ही करेंगे. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 8 40. व्हाट्स द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन? 8 टाइम्स. समझ में आया? 3 लाइंस भी यहाँ पे बनी हुई थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इनका कुछ काम तो होगा. अगर इतना ही सिंपल होता तो व्हाई कुड हैव डिजाइन्ड लाइक दिस. समझ गए? एडिट कर लीजिए जरा उसको. कभी भी क्वेश्चन आए चिल्ड्रन, कभी भी, वो जैसे कहते हैं ना शॉपिंग करने जाए भाई, अगला पिछला दुकानदार का भी समझ लीजिए कैसा है एटीट्यूड उसका, कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा आपको. सेम यहाँ पे भी कुछ तो होगा अगर लाइंस ड्रॉन है तो. बी क्विक, बी क्विक. So what do we require is net profit before interest and tax. Then in the sequence we deduct interest, we get net profit after interest before tax, and then we deduct what? Tax, and we get the answer net profit after interest and tax. What do we have in the question children? चलिए. So children, we have net profit before tax given to us is 3,20,000. Do we have the element of tax in the question? नहीं दिया. And interest on debentures कितना दिया children हमको? 4 lakh. Interest on debentures eyesight test कराइए. 8%. What is 8% of 4 lakh children? 32,000. Put it fast. So children, 8% of 4 lakh is 32,000. So अगर इससे आप x मान लेंगे तो x minus 32 is 320. What would be the value of x children? 3,52,000. अब फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. व्हाट इज द वैल्यू गिवन? Upon 32,000. Answer would be 11. समझ में आ गया चूरन की इंपॉर्टेंस? चलिए, बी क्विक टू दिस, बी क्विक, वेरी क्विक. चलो मूविंग. क्वेश्चन नंबर 73 चिल्ड्रन. We have net profit after
टैक्स और बैंक का टर्म दिया हुआ है. सो एवरीथिंग अपार्ट, सबसे पहले सीक्वेंसिंग कर लेते हैं. What do we write first in the sequence? Profit before interest and tax. We subtract interest. What do we get, children? Net profit after interest and Before before tax. tax. Then we subtract what? Tax. And we get after interest and tax. 15% of 10 lakh is what, children? 1,50,000. Heard this well, children? Pakka? We have which net profit out of these three children in the question? After interest. The last one? What's the value given? 60,000. चलिए. इंटरेस्ट की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों. हाउ मच? चलिए. टैक्स का परसेंटेज कितना दिया है? अब यहाँ पे स्टोरी काम आएगी जो आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा था. चलो, दिस वाज द रीजन कि आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर क्यों पढ़ाया गया था. दिस 40% विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट वैल्यू? किस वैल्यू पे चिल्ड्रन ये 40% कैलकुलेट होगा? आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स. जो नेट प्रॉफिट आता था उसके बाद आप टैक्स कैलकुलेट करते थे, देन वी यूज्ड टू गेट दिस. So 40% is to be calculated on this. Do we have this value in the question? No. तो सर एक काम करते हैं, इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं. Will it suffice? No, not at all. इसके लिए मैं पहले आपको एक टफ टेक्निक बताऊंगा, फिर मैं एकदम आसान टेक्निक बताऊंगा. ये वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, isn't it children? तो let this be x. Is that clear? तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? x माइनस 40% ऑफ x. और जब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 60,000 आएगा. तो लॉजिक ये बना, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स में आप टैक्स को माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये इक्वेशन बनेगी ना भाई. चलिए, रेडी एवरीबॉडी? ध्यान से सुनिएगा. चिल्ड्रन, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो आपने क्या मान लिया? x माइनस 40% ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट? तो आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और आप इसे शायद सॉल्व भी कर लेंगे. पक्का? चिल्ड्रन कर लेंगे? स्टार्ट करें? चलिए, फिर इसके बाद मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा. So x minus 40x by 100 equals to what children? LCM ले लिया जाए. चलन LCM ले लें. 100x minus 40x equals to what? 60,000. So 100 minus 40 is what children? 60x upon 100 equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. सो चिल्ड्रन 60x equals to 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 60 lakh. X equals to 60 lakhs upon 60. X equals to, हवा निकल गई सर, बट आंसर आ गया एटलीस्ट. यस और नो चिल्ड्रन? कितनी लाइंस वेस्ट कर दिया आपने, बस ये बता दीजिए. हाउ मेनी लाइंस डिड वी वेस्ट चिल्ड्रन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. मैं आपको एक लाइन में इसका फॉर्मूला बता देता हूं. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है. लेट दिस बी 100 चिल्ड्रन. ये 40 तो ये कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा लीजिए. इफ 60% is equal to 60,000, 100% would be equal to what? 100 into 60,000 upon 60. सेम आ जाएगा आंसर. आंसर
सेम आ जाएगा। 6 1 क्या है आंसर? एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया? एक लाइन में आंसर आ गया। तो ये वैल्यू चिल्ड्रन वुड बी हाउ मच? 250। इंटरेस्ट पता है आपको? तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. What is net profit before interest and tax? Upon what is interest? 1,50,000. 1 2 3 4 1 2 3 4. What is 15 upon 25 children? If 5 3s are 15, sorry, 5 5s are 25. नीचे लिखना तो ऊपर लिख गया. 1.66 is to 1. तो आप तो इसे टाइम्स में लिखते हैं, तो दिस इज 1.66 और 67 टाइम्स. पीपल हर्ड दिस. कैसे अप्लाई किया, कैसे कैलकुलेट किया? चलो आंसर यस समझ गए? तो दोनों अप्रोचेस लिख लीजिए. इन फ्यूचर अगर आप भूल जाए यूनिटरी मेथड क्या है, तो एटलीस्ट अलजेब्रा तो आपको आती है. कुछ लोग कहेंगे सर अगर वो भी नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एग्जाम में पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा. बी क्विक. चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज टू बी कंप्यूटेड. अगेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन टू यू एंड टैक्स रेट इज आल्सो गिवन टू यू. So let's apply that simple children. What do we write first? Net profit before interest and tax. We happen to subtract what? Interest on borrowings, that is debentures. What do we get? Net profit after interest before tax. What do we subtract then? Tax. What answer will we be getting? After interest and tax. Do we know the value of net profit after tax? How much? What is the percentage rate of tax given? Very good. This 22% sounds to be calculated on what, children? Before value or after value? Before. Is it given to us? Take this as 100. Correct? This is 22. So this would be what? First unitary method apply kar lijiye. 7,80,000 divided by what, children? 78. Sir 22 से मल्टीप्लाई ना कर ले, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, कोई जरूरत ही नहीं है. 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. आंसर वुड बी 10 lakhs. What is 13% of 3 lakhs? 39,000. जिन्होंने वो फेविक्विक जूस पी लिया है वो भी कोशिश करें. करंट पैटीज खा ले, सही हो जाएगा. फेविक्विक शेक का जो एंटी इफेक्ट होता है करंट पैटीज से सही हो जाता है. टोटल इज 1039 चलन. फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. व्हाट अपॉन व्हाट चलन? 10,39,000 डिवाइडेड बाय 39,000. कॉमन कॉमन कैंसिल हो जाएगा. 0 0 0 0 0 0. कृपया करके 39 ना काट दीजिएगा. इट इज मैथमेटिक्स नॉट मैथमेटिक्स. हाउ मच? 26.64 टाइम्स, नॉट परसेंट. चलन वेरी डिफिकल्ट. नो सर. चलिए बी क्विक, बी मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 75 के बाद आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा. प्लीज पीपल आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मग अप दिस फॉर्मूला चिल्ड्रन. समझ में आ गया? इस फॉर्मूले को मत रटिएगा, मत रटिएगा. गारंटी दे रहा हूं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत सॉल्व कर देंगे, गारंटी. क्योंकि रटी हुई चीजें हमेशा भूल जाती हैं, हमेशा, क्योंकि उनका कोई लॉजिक नहीं होता है सच. और जब आप लॉजिकली किसी को फ्रेम करते हैं फॉर्मूले को तो आपको याद रहता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस डेरिवेशन. ओके, सेम विद द केस 75 क्वेश्चन में भी कर लेंगे बच्चों? पक्का? चलिए तो ये होमवर्क में कर लीजिएगा. लेट्स कंटिन्यू. एंड इस कैटेगरी में आखिरी रेशियो पढ़ेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स. रिकनेक्ट.